السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سوکی ٹی وی. میں ہوں آپ کا میزبان ملک محمد نواز سوکی حاضر خدمت. ناظرین اس وقت میں الیکشن کمیشن کے باہر ہوں اور بڑی فورس بھی منگائی گئی ہے اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا فیصلہ آتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. موجود ہے اور 3 رکنی بینچ کے پاس جائیں گے سپریم کورٹ. سیاسی جماعتوں کو صرف ایک ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام میں اپنی پاپولیرٹی کھو جائے. یہ جو خطرہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو ہے جو آج عوام میں نکل بیچارے برگر تو باہر کھڑے ہو کے باقی انہوں نے کیا چاہا. سر یہ بتائیں کہ وہ الیکشن میں سر یہ بتائیں کہ جب بھی فیصلے خلاف آتے ہیں تو چاہے مسلم لیگ نواز ہے وہ کہتی ہے کہ جی ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے. پیپلز پارٹی کہتی تھی جی جب یوسف رضا گیلانی صاحب کا معاملہ ہوا تو ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے. آج پی ٹی آئی بھی وہی بات کر رہی ہے. تو پی ٹی آئی میں تو فرق ہونا چاہیے تھا. وہ فیصلے کو تسلیم کریں گے, یہ جو ریمیڈی ہے وہ چیلنج کریں اپنے. جی سر جی سر جی فورن فنڈنگ میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ فورن گورنمنٹس جو ہے وہ پارٹی کو فنڈ کر رہی ہے. جیسے کہ ابھی فاروق نے اور ملکہ نے کہا کہ آپ پورا جے یو آئی کی فنڈنگ نکالیں اور دیکھیں کہ جو سیف الاسلام قذافی تھے وہ تشریف لائے تھے یہاں پہ تو کیسے آئے تھے اور وہ کیا کرنے آئے تھے. تو ذرا فضل الرحمان صاحب کی فنڈنگ جب آپ نکالیں گے تو تب آپ کو پتہ چلے گا فورن فنڈنگ کیا ہوگا. عارف نقوی نے ایک ایسا میچ کرایا تھا. آپ نے سوال پوچھا ہے بھائی. عارف نقوی نے ایسا میچ کرایا تھا جس میں پشاور کو گالیاں دی گئی, فیصل آباد کو گالیاں دی گئی اور وہی فنڈنگ تحریک انصاف نے ان کو دی گئی. اس کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے؟ اخلاقاً یہ جائز تھا آپ کے لیے؟ یہ جو میچ کی تو فنڈنگ ہی نہیں, نہ ہی وہ فنڈنگ یہاں پہ وہ ڈنر کی فنڈنگ تھی. ڈنر کا جو ہے وہ ایسا ایشو نہیں تھا. اب مجھے پتا ہے کہ کسی نقطہ جو آپ نے پہلے میں نے سوال کیا تھا اس میں تھوڑی سی مداخلت تھے. آپ نے کہا کہ جو آڈیٹ کر کے دستاویز سب کو دی گئی اس میں اگر کوئی تفصیلات ہوں گی تو ظاہر ہے اتنی ڈیٹیل سے نہیں پڑی ہوتی ہے, لیکن ان تو انہوں نے کی ہے نا پورا ذمہ دار تو وہ ہوں گے. اگر کیا تو وہ بھی انہوں نے ان قانون فنڈز آتے ہیں. پہلے ڈکلریشن آتی ہے جیسے یہاں پہ ڈکلریشن آئی الیکشن کمیشن میں. عارف نقوی صاحب نے فار ایگزامپل فنڈ کیا تو انہوں نے الیکشن کمیشن میں بھی اپنا ایفیڈیوٹ دیا, انہوں نے برٹش لاء میں بھی اپنا ایفیڈیوٹ دیا قانون کے بعد. اس کے بعد دوسرے مرحلے کے اوپر آپ کا جو اکاؤنٹنٹ ہے وہ سارے وہ ویریفائی کرتا ہے. اس کے بعد وہ چیئرمین کو رپورٹ دیتا ہے کہ نہیں یہ ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے تو آپ دس پروسیس آپ سائن کرتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے جو مس ڈکلریشن کی بات ہو رہی, مس ڈکلریشن اس صورت کے اندر ہے کہ اگر کوئی پیسہ ہمیں وصول ہوا اور ہم نے اپنے بینک اکاؤنٹ میں جمع نہ کروایا وہ جمع ہے. اس کے علاوہ جو پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کی شک نمبر 13 ہے وہ یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ نے اپنی آمدن, اخراجات, اثاثے اور جو واجبات ہیں اس کی آڈیٹڈ رپورٹ جمع کروانی ہے. وہ آڈیٹڈ رپورٹ اسی قانون کے مطابق جو ہے وہ خان صاحب نے سرٹیفائی کر کے جمع کروائی ہے. یہاں کچھ ایسا نہیں ہوا کہ عمران خان کا کوئی ذاتی اکاؤنٹ ہے جس طرح نواز شریف کے اکاؤنٹ میں مس ڈکلریشن تھی, یا عمران خان کے کسی پرسنل اکاؤنٹ کے اندر کسی قسم کی کوئی مس ڈکلریشن نہیں ہے. اس کو قانون کی نظر میں اس تناظر سے بھی دیکھا جا سکتا جس طریقے کا ایک تاثر بنایا جا رہا ہے. آپ یہ بتائیں اس کے یہ جو فیصلہ ہے جو مس ڈکلریشن والا بھی ہے اس کو بھی ہم چیلنج کرنے جا رہے ہیں. اور جو پیسہ عارف نقوی کی طرف سے آیا ہے وہ پاکستانیوں نے دیا ہے, ان پاکستانیوں کا ریکارڈ بھی موجود ہے, عارف نقوی کا ایفیڈیوٹ بھی موجود ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ جو 16 اکاؤنٹس کی بات کی جا رہی ہے ان 16 اکاؤنٹس میں کوئی پی ٹی آئی لاہور کا اکاؤنٹ ہے, کوئی پی ٹی آئی بلوچستان کا اکاؤنٹ ہے جن میں کوئی بڑی ٹرانزیکشن بھی نہیں ہوئی. تو لہٰذا یہ ممنوعہ سے کیا مراد ہے؟ ممنوعہ کی ڈیفینیشن بتائیں. ممنوعہ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فورن پاکستانیوں سے لیے 16 اکاؤنٹس جو ہیں جو ڈکلریشن میں اینیمی کنٹریز سے. ابھی سردار صاحب نے کہا ہے آپ دستخط کرتے ہیں بیسٹ آف نالج اینڈ بلیف, اور جب نالج اینڈ بلیف آ گیا تو آپ نے نالج اینڈ بلیف تنخواہ نہیں لیتا تھا. نالج اینڈ بلیف دیتے ہیں یہ بیوقوف نہیں ہے. کوئی بھی بندہ جس نے انلیگل فنڈنگ کرنی ہے وہ بینک کے تھرو نہیں کرتا.
फॉर एग्जांपल उसामा बिन लादेन ने जो पैसे नवाज शरीफ को दिए थे वो बैंक के थ्रू नहीं दिए थे, वो बैंकों में पैसे भर के दिए थे। अगर आपने इलीगल फंडिंग करनी है वो लोग डॉलरों में बैंकों में भर के देते हैं। हम ये काम नहीं करते, ये काम जरदारी साहब का, नवाज शरीफ का, इन लोगों का रहा है। बहरहाल एक और कामयाबी है आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ की, अल्हम्दुलिल्लाह एक और जो इन्होंने हवा बनाया था वो निकल गया। अब कामयाबी की मिठाई दें, ये छोड़ दें, राइट लेफ्ट छोड़ दें, इलेक्शनों में चले। अगर किसी में दम है लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड, पाकिस्तान के अवाम को फैसला करने दें उसका किसका हक है। ये रोने धोने से कुछ नहीं होगा। आप समझते हैं कि फैसला हतमी है इसका फॉरेन फंडिंग केस का जो अकबर एस बाबर की थी हतमी फैसला अकबर एस बाबर का इजी अकबर एस बाबर का इजी लोड तो हलाल नहीं ना हुआ, वो मामले में लोन लीक के तो पैसे ही भर गए हैं इस हवाले से। उन्होंने कह दिया था कि अकबर बाबर has not been able to prove anything। अकबर एस बाबर की तो बैड इन्वेस्टमेंट है। मैं एक और टेक्निकल मुद्दा बताना चाहता हूँ आपको, जो एक मिनट, जो पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 है, पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 के अंदर मल्टीनेशनल का जिक्र है, किसी फॉरेन कंपनी का जिक्र नहीं है। तो बुलेटिन को जो है बुलेटिन के जरिए पैसे सिर्फ आए और बैंकिंग अकाउंट में आए, उस कंपनी का पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 वादे तौर पे पढ़ लें, उसमें किसी की फॉरेन कंपनी का जिक्र नहीं है। पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट कंपनी का जिक्र है, लिहाजा वो भी एक नुकता है जिसको हम चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट के अंदर। मिठाई मंगाए, मिठाई मिठाई अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैं देर से पहुँचूँगी, ये ज़रा बताएं कि फ़ैसला कैसा आया है। फैसला असल में जो लेमैन लैंग्वेज है वो ये है, तो आसान लफ्ज़ों में यानी समझा दें हमारे। आसान लफ्ज़ों में फैसला ये है कि खोदा पहाड़, हाँ। निकला चूहा, अच्छा। वो भी मुर्दा। और तहरीक इंसाफ वाहिद पाकिस्तान की पार्टी है कि जो पॉलिटिकल फंडिंग करती है पाकिस्तानियों से करती है। 40,000 उसके जो डोनर हैं उनकी लिस्ट जो है इनके पास मौजूद है। इस फैसले के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम साबित न कर सकें। और यानी हमारे सारे अकाउंट्स ऑडिटेड भी हैं, गैजेटेड भी हैं। ठीक। इसके मुकाबले में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने फैसला किया था कि एट पार पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, दीगर जमातें हो, सबका बराबर फैसला किया जाए। इसीलिए हम इस इलेक्शन कमीशन को बायस समझते हैं कि इसने सिंगल आउट करके पीटीआई का फैसला कर दिया है। और इतना शोर मचाया हुआ था सारी पीडीएम ने और अपोजिशन ने कि कोई तूफान आ जाने लगा है। ठीक है, कोई ऐसी कैफियत नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ भी सवालात उठाए हैं हमारे पास उसका जवाब मौजूद है। सारे अकाउंट्स मौजूद हैं, हर चीज़ यानी ऑडिटेड मौजूद है। ये सबसे बड़ी बात होती है कि आपके अकाउंट्स ऑडिटेड हों। ठीक है, ना सिर्फ ऑडिटेड हैं बल्कि गैजेटेड हैं। उसके बिलमुकाबिल नवाज शरीफ जिस तरह पैसे लेता रहा, PMLN के अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। PMLN और नवाज शरीफ ने उसामा बिन लादेन से पैसे लिए बेनज़ीर को डिसलॉज करने के लिए। इसी तरह फजलुर रहमान ने सैफुल इस्लाम यहाँ पे आए थे, कज़ाफ़ी के बेटे, वो इनको पैसा दे के गए थे। उसी से बड़े बड़े जो महल्लात इन्होंने तामीर किए हुए हैं मदारिस के नाम पे, वो इसी के काम थे। चुनाचे यानी आज तहरीक इंसाफ के सुरखरू होने का दिन है। और हम ये कहते हैं कि बजाय इसके कि आप लोगों को यानी मिसगाइड करें, ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए आम इंतखाबात उसकी तरफ जाएं ताकि ये सारा किस्सा ही ख़त्म हो। सर बहुत शुक्रिया जनाब मियां हमें साथ जनाब सर। वालेकुम सर की हाल नहीं जी सर की मैं ये समझता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन को पंजाब असम्बली ने और सूबा सरहद की असम्बली ने डिक्लेयर किया है कि जानबदार है। और तहरीक इंसाफ का मुद्दा ये है कि जिस तरह हमारी फॉरेन फंडिंग के हवाले से, ममनुआ फंडिंग के हवाले से बात हुई है, इस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मामला को भी अवाम के सामने रखा जाए। तहरीक इंसाफ इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और जो खदशात और तहफ़्ज़ात दुनिया हमारे खिलाफ फैला रही थी कि इससे मोहतरम इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तहरीक इंसाफ का जो सिंबल है वापस लिया जाएगा, वो सारी बातें गलत साबित हुई। ये फॉरेन फंडिंग का केस नहीं है, ये ममनुआ फंडिंग का केस है। जिसमें मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो उसको फोरफीट कर सकते हैं यानी जब्त कर सकते हैं, उसके खिलाफ भी
तहरीक इंसाफ पूरी तरह तैयार है कि वो हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे और उसके बाद फैसला अपने हक में करवाएंगे। ज़रा हमारे सॉरी ज़रा हमारे नाज़रीन को आसान लफ्ज़ों में समझा दें कि आज का जो फैसला है आप इस पर मुतमईन हैं? आज का जो फैसला है हम इस हद तक तो मुतमईन हैं कि तहरीक इंसाफ पर जो पूरे मीडिया के कुछ हिस्से ने और पूरी पाकिस्तान की सियासी जमातों ने ये इल्ज़ाम तराशी की हुई थी कि ये फॉरेन फंडिंग का केस है। ये इलेक्शन कमीशन ने भी ये डिक्लेयर किया ये फॉरेन फंडिंग का केस नहीं है, ये मुमंगा फंडिंग का केस है। ये फ़र्क करके इससे किसी सियासी जमात को कालदम करार नहीं किया जा सकता मुमंगा फंडिंग में, और किसी सियासी जमात का जो सिंबल है उससे वापस नहीं लिया जा सकता। हम इसके खिलाफ अपील पे जाएंगे, हम इस हद तक तो मुतमईन है, लेकिन हमारा मुतालबा चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन से है। जिस तरह दो हमारी सूबाई असेंबलियों ने बात कही है कि पाकिस्तान नून लीग है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो जो JIT थी वो दोनों ही वो स्क्रूटनी कमेटियाँ बनी थी एक ही वक्त में, तो उनके फैसले क्यों नहीं अवाम के सामने लाए जाते? ठीक है, हमारा ये मुतालबा जेन्युइन है, कानूनी है, अखलाकी, आइनी और कानून के मुताबिक है कि बाकी सियासी जमातों को भी मैदान में लाकर उनकी फॉरेन फंडिंग है या मुमंगा फंडिंग को अवाम के सामने लाना चाहिए ताकि सफ़ेद और काले के अंदर तमीज़ हो सके। मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ इस हद तक जरूर कामयाब हुई है कि पाकिस्तान के अंदर जो वावेला शोर का हंगामा बचा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज गई कल गई फॉरेन फंडिंग इसको हुई है, तो मैं समझता हूँ वो जो हवा था वो उस गुब्बारे से आवाज़ निकल चुकी है। तहरीक इंसाफ आज भी कायम है, कल भी इंशाल्लाह इंतखाबात में जाएगी। तहरीक इंसाफ का एक ही मुतालबा है कि हमें पाकिस्तान के अवाम के पास जाना चाहिए, जल्द इंतखाबात होने चाहिए। सूबाई असेंबलियाँ भी ये कहती हैं और फिर मरकज़ के अंदर भी तहरीक इंसाफ के जो 11 अरकान असेंबली को यानी मुनफरद अंदाज से उनको डिस्पेम्बर किया है। हमारा हाई कोर्ट में ये मुतालबा था कि सबको किया जाए, इनको अलग चूज कर क्यों किया गया है? ये भी गैर मुनसिफाना फैसला है इलेक्शन कमीशन का। और जनाब स्पीकर साहब, मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ इस मामले से सरखुरों का निकली है, वो कालदम ने हुई, उसी की क़यादत बाकी है, उसका झंडा बाकी है, उसका सिंबल बाकी है। हम इस फैसले के खिलाफ जो नुकात हमारे इस फैसले में हमारे खिलाफ गए हैं, हम उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इनके जो गैर कानूनी गैर आइनी फैसला जारी किए गए हैं उनको रद्द कर देगी और तहरीक इंसाफ के हक में फैसला देगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। तो नाज़रीन प्रोग्राम आपने देखा, इसी के साथ मलिक नवाज शोकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह सुनने वाले अपना बहुत ख्याल।